Hey everyone, so I hope you all are well. So as you know that it is confirmed today कि GATE exam or the GATE 2022 exams, they are going to be conducted from the 5th Feb only, right? There is no postponement of the GATE exams as such, right? So the first exam is on the 5th Feb, that is the GATE Computer Science exam. So in this video I am going to discuss some of the things that you can do or you should do before the this GATE exam, okay, and what you should do on the day of GATE exam, okay. So let's understand what are those important things that you should or you must concentrate. So basically, like at this point, okay, where there is only one day for the first exam, that is GATE CSE exam left, okay. So what you should do actually? So I'll not say that you should revise all the pending things that you are like not much confident, okay, all the technical aspects of your respective subject, you should revise those things, okay. Basically the one day before the exam should not be for revising or getting the anxiety, okay, for the things that you are actually not confident, or you can say that you are not able to recall, okay, again and again. That is okay. If you are not able to recall some of the things, that is okay, because if you try to learn those things now, or if you try to revise those things now, okay, so it may create some negative emotions, negative thoughts in your mind. And because now you will be under your pressure, okay, that the exam is on the 5th Feb, okay, let's say we are talking about the GATE CSE exam, and I'm not able to recall, I'm not able to learn, I'm not able to understand this concept. So under the pressure, the things will be like you will be getting the or you will be creating the negative energy inside you. And with this mindset, this can affect your GATE exam on the day of actual GATE exam day, right? तो जो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि लाइक मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स दे विल बी गेटिंग द थॉट कि अगर मैंने अच्छा गेट एग्ज़ाम नहीं किया, इफ़ आई गॉट लेस मार्क्स, ओके, और लेट्स से उस दिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि आई एम नॉट एबल टू डू, ओके, and I have not touched upon that particular concept of that particular subject, and if that question came, then what will happen? So these type of situations, or the type of you can say thoughts can come, okay. You can take them as, let's say, natural, okay. सभी के मन में आता है, ओके. तो लाइक मोस्टली के मन में तो ये आता ही है कि अगर वो चीज़ आ गई, वो चीज़ आ गई. बट कुछ स्टूडेंट या कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपने माइंड को इतना मेकअप किया हुआ है कि ठीक है, जो होगा अच्छा होगा. बेसिकली ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, राइट. बेसिकली आपको क्या करना है, नेगेटिव थॉट्स आएगा, लेट इट कम, बट आपको बात करनी है अपने माइंड से कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता भी है जो मुझे लगे उस दिन कि नहीं है ठीक, या मुझ पे नहीं हो पाएगा, तो दैट इज़ ओके. या कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कठिन है, तो दैट इज़ ओके, वो सभी के लिए कठिन होगा. तो ऐसे अपने माइंड को बोलना है. इसमें ये नहीं बोलना कि अगर आ गया तो मेरा क्या होगा. लाइक आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप अकेले हो और सबको आता है, ठीक है. तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नेगेटिव थॉट्स को हटाने के लिए आपको ये थॉट्स लाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा. देन ओनली यू कैन गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव थॉट्स. बिकॉज आपका माइंड अगर जब तक शांत नहीं होगा, तो आपका जो डे ऑफ एग्ज़ाम है, इट कैन बी लाइक जो आपने सोचा था, जो अच्छा होना भी था, वो भी नहीं हो पाएगा. तो अभी के समय एनजाइटी, ये चीज़ें जो भी आएंगी, उन चीज़ को दरकिनार करिए और कहिए अपने आप से, मतलब अपने आप से बात करिए कि जो होगा अच्छा होगा, ओके, एवरीथिंग विल बी फाइन. ऐसा नहीं है कि गेट एग्ज़ाम इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके. बट अगेन आई एम नॉट सेइंग कि गेट एग्ज़ाम आप ख़राब करके आ जाओ फिर कहें कि गेट एग्ज़ाम इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ओके. आपने पूरे साल मेहनत करी है, राइट. तो उस मेहनत को इन चीज़ों से ख़राब मत करिए, ठीक है. जो होगा अच्छा होगा, ठीक है. माइंड को फ्रेश रखिए,
और अपनी सेहत पे थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि वेदर इज़ चेंजिंग, सो ईट द न्यूट्रिश फ्रूट्स लाइक जो भी आपको ठीक लगे वो खाइए, और जंक फूड थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस दिन आपका गेट एग्ज़ाम होगा उस दिन आपका जो मेंटल स्टेट, ठीक है, एंड आपकी फिजिकल हेल्थ बोथ शुड बी इन अ प्रॉपर कंडीशन, ओके, तभी आप अपना बेस्ट से बेस्ट इनपुट दे पाएंगे, ओके। दी नेक्स्ट थिंग इज़ कि ये तो हमारा हो गया कि हमको कुछ ऐसा चिंता नहीं करनी कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मैनी ऑफ द थिंग्स डिपेंड ऑन दी, यू कैन से, डे ऑफ एग्ज़ाम ऑल्सो, ओके। यू कांट से कि आपने पूरे साल मेहनत करी तो कई बार हो जाता है कुछ भी ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं ऑन द डे ऑफ एग्ज़ाम, बट जो चीज़ें आपके हाथ में हैं कि आपका माइंड उसको अपने पॉजिटिव थॉट से चलाना है, वो आपके हाथ में है। तो अगर आपको ज़्यादा ही थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, ज़्यादा ही आपके थॉट्स आते जा रहे हैं कि ये क्या होगा एग्ज़ाम के दिन, मुझे लगता नहीं मैं पास हो पाऊँगा, मैं क्वालिफाई भी कर पाऊँगा, कई बार ऐसा आ सकता है, तो कि अगर नहीं हुआ, अगर मैंने ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग कर दिया उस दिन डे ऑफ गेट एग्ज़ाम में, देन व्हाट विल हैपन। तो अगर आ भी रहा है तो डू वन एक्टिविटी दैट आई एम sharing with you that I have done with myself also in GATE and in the other aspects of the life also. So like आज जब आप सोएं रात को, तो before getting to sleep just do this thing that talk to your mind, okay, कि जो होगा अच्छा होगा, okay, टॉक टू योर माइंड, जो होगा अच्छा होगा, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा रहा है, विजुलाइज जो गेट का जो दिन है उसको विजुलाइज करिए कि सब कुछ अच्छा हो रहा है उस दिन, मेरे सामने जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैं उनको आराम से करता जा रहा हूँ, और मुझको बहुत क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, लाइक मैंने जो जो पढ़ा है वही आ रहा है, राइट। सी दिस इज़, you can say, one experiment of the spirituality, और it is somewhat related to law of attraction अगर आप उसकी बात करें, है ना। तो ऐसे आप करिए कि जो होगा अच्छा होगा, और मैं उस दिन गेट का एग्ज़ाम दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से हो रहा है, मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं, है ना, मेरे को तो बहुत अच्छे से सभी क्वेश्चंस आते जा रहे हैं, और मैंने अपने टाइमली, है ना, मैंने एक बार करने के बाद, दो बार करने के बाद क्वेश्चंस को फिर रिवाइज भी कर लिया कि कोई मेरा क्वेश्चन गलत तो नहीं है, मतलब जैसा आप चाहते हैं, द पिक्चर दैट यू वांट ऑन द डे ऑफ गेट एग्ज़ाम, यू शुड विजुअलाइज दैट थिंग इनटू योर माइंड, ओके। और सब कुछ अच्छा हो रहा है, नॉर्मल चाहिए, आप खिलखिलाते हुए, लाइक विद हैप्पी मूड, हैप्पी माइंड, यू आर कमिंग आउट ऑफ द सेंटर, ओके, विद हैप्पी माइंड, ओके। If somebody is asking, okay, have you done that question, you are saying yes, I have done that question, okay, and your question is correct also, okay. The same thing you have to do like when you wake up in the morning, okay. Do not just see the phone, okay, just avoid the phone for at least 2-3 days, okay, and सुबह उठते ही आप याद करें, okay, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है मेरे साथ अच्छा हो रहा है, और गेट के एग्ज़ाम को विजुलाइज करिए, जो आप चाहते हैं उसको अट्रैक्ट करिए, माइंड में विजुलाइज करिए, अगेन सेम चीज़। और जितने आप डीपली इस चीज़ को विजुलाइज करेंगे दैट माई डे ऑफ गेट एग्ज़ाम, आई एम गिविंग दी लाइक आई एम मार्किंग दी आंसर्स ऑन दिस कंप्यूटर स्क्रीन, ओके, एंड सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं, बहुत अच्छे से आ रहे हैं, है ना, मैं कॉन्फिडेंट होकर के आंसर्स कर पा रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है मेरी, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्सेप्ट करने लगेगा, ओके, योर सबकॉन्शियस माइंड विल बी एबल टू एक्सेप्ट दैट यस एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड इट्स लाइक इट विल बी नेचुरल, ये आपका जो नेगेटिव थॉट्स वाला पैटर्न है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ओके। सो दिन में भी अगर बीच में भी आपका नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इसको विजुलाइज करिए, okay. So this one day is for training your mind, or you can say for cleaning your mind from these negative thoughts, okay. Now let's come to the what to do on the day of gate exam, जब मेरा क्वेश्चन you can say एग्ज़ाम डे है, तो आप सेंटर पे गए अपने जहाँ पर भी आपका गेट एग्ज़ाम है, तो उस सेंटर पे पहुँचने के बाद देन आपका एग्ज़ाम शुरू होगा, तो जस्ट टेक केयर ऑफ सम ऑफ द थिंग्स। फर्स्ट थिंग इज़ रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली, कोई भी चीज़ आप केवल ओवरलुक ना कर जाएं कि आपको पता है कि ऐसा ही होगा, नेगेटिव मार्किंग इतनी ही होनी है और इसमें होगी इसमें नहीं होगी, आपने पहले से टेस्ट सीरीज दी हैं, सम थिंग्स मे चेंज, लेट्स से, ओके, गॉड नोज।
तो आप all the instructions you should read very carefully. Okay. Now after that, when you enter inside the test, okay, you have to do one thing for very much sure कि आप लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाई होगी सभी लोगों ने, एंड दैट इज़ ओके. सो व्हाट यू कैन डू इज़ कि आप पहले वो क्वेश्चंस करिए जो आपको श्योर शॉर्ट आते हैं. लाइक आपने एक क्वेश्चन किया, आता है, डन. ये भी आता है, डन. मतलब ये भी किया और उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा, कम टाइम में और कॉन्फिडेंस से आप जिस क्वेश्चन को मार्क कर पा रहे हैं उनको करते रहिए. जिनमें आपको लगता है कन्फ्यूजन हो रहा है, जिनमें बहुत टाइम ले रहा है, उन क्वेश्चन को छोड़ दीजिए. ठीक है. डू द क्वेश्चंस इन द फर्स्ट स्कैन, दोज हु आर लाइक यू कैन से फॉर दोज यू आर कॉन्फिडेंट. इन द सेकेंड स्कैन, फिर दूसरी बार जब आप क्वेश्चंस करने आएंगे तब आप उन क्वेश्चंस को देखिए जो क्वेश्चंस आपने नहीं किए, जिनमें कन्फ्यूजन था, उनको करिए. राइट. तो अपना कोई भी टाइम, योर वैल्यूबल टाइम शुड नॉट बी स्पेंड you can say on those questions on which you are not confident. Okay, give them the try in the next scan. Okay, दूसरी बार में करिए. ठीक है. इससे आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो पाएगा और आप सारे क्वेश्चन चेक भी कर पाएंगे. राइट. ये ऐसा भी ना हो कि क्वेश्चन पेपर आपका पूरा चेक भी नहीं हो पाया, आप देख ही नहीं पाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन छूट गए. ठीक है. टाइम मैनेजमेंट शुड बी प्रॉपर. नाउ दी नेक्स्ट थिंग इज कि कई बार हमारा क्वेश्चन बड़ा आता है. राइट. कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है एंड देयर इज मैनी थिंग स्पेसिफाइड इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो समटाइम्स स्टूडेंट्स सी कि ओके दिस क्वेश्चन इज वेरी मच लॉन्ग, सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. राइट. मे बी सम ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, दे मे बी थिंकिंग कि हमारे मन में भी ऐसा होता है. राइट. तो फ्रॉम माई एक्सपीरियंस आई कैन से कि मैनी टाइम्स इट हैपन्स द लॉन्गर द क्वेश्चन इज ईजियर द क्वेश्चन. Why? Because उस लंबे क्वेश्चंस में that long question consists of a lot of information actually, which if you write down on the piece of paper, you just have to relate all the you can say information and you will directly get the answer. Just only you have to do this thing. So अगर if there is a longer question, okay, you can give it the try in the second scan, okay, according to what your strategy is. But do not think कि उस क्वेश्चन को मैं नहीं कर पाऊंगा. ओके. गिव अ ट्राई टू दैट क्वेश्चन ऑल्सो. ओके. एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज डू नॉट ओवरलुक द यू कैन से lines. What I mean to say is many times it happened that some of the questions we have studied in our PYQ, that is past year gate questions, or in some of the test series or somewhere else, and when similar question come inside the actual gate exam, then sometime हमें ऐसा लगता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, बट और हम उसका आंसर लगा देते हैं, बट वो कई बार आंसर गलत हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में क्वेश्चंस में कीवर्ड तो वही वाले लग रहे थे, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ लैंग्वेज इस तरह से बनाई गई थी कि वो क्वेश्चन पहले वाले से रिलेट नहीं कर पा रहा था. एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि लाइक या इट हैपेंड विद मी इन गेट 2012. लाइक आई गेव द गेट इन गेट यू कैन से 2012 फॉर द फर्स्ट टाइम. तो उससे पहले जब मैंने टेस्ट सीरीज दिया, ठीक है, ऑल्दो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, बट टेस्ट सीरीज जब मैंने दिया तो उसमें एक क्वेश्चन था like CSE people will be able to relate much कि there are 3 fork, okay, or you can say there was a loop, okay, for I equal to 0 to I less than n, and inside that there was fork statement. Okay, so it was like कि for n times that fork statement was executing, and the question was asking tell the total number of processes created, total number of processes. Okay, so it was like 2 to the power n. Okay, but in the gate 2012, okay, coincidentally similar question came that there was 3 fork one by one in the serial manner, and I was asked, or the question was asking tell the total number of child processes, and you know total number of child processes will be 1 less than the total number of processes. Total number of processes were 2 to the power n, and the answer of this question should be 2 to the power n then minus 1, right? But I thought okay, this is the same question. Okay, this is the same question,
as of the previous one, okay, which came in the test series, and I just write the answer as per like 2 to the power n, okay, and the question got like the you can say negative marking, okay. So many times it happens, okay. Sometimes the question may ask you, okay, what is the protocol behind the you can say electronic mail transfer protocols, okay. So you may say कि SMTP, okay, there may be option like SMTP, there may be option like TCP. So the answer of this question is like TCP, okay. SMTP के पीछे भी कौन सा प्रोटोकॉल है वो क्वेश्चन लेट से आस्क कर रहा था, वो था TCP, लेकिन आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर और उसमें SMTP ऑप्शन भी था, तो आपने कहा SMTP, दिस इज द प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसफर, बट जबकि क्वेश्चन ने कुछ और पूछा था, इसकी वजह से आपका नेगेटिव मार्किंग चलेगी। एंड यू नो इन गेट आपका एक क्वेश्चन गलत होता है और आपकी रैंक बहुत आगे पीछे हो जाती है। एक सही क्वेश्चन की वजह से आपकी रैंक बहुत अच्छी बन सकती है और एक खराब होने की वजह से आपकी रैंक पे बहुत गैप आ सकता है। सो इवन है ना, 1 नंबर क्वेश्चंस मैटर्स अ लॉट इन गेट, राइट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। क्वेश्चन आपको पुराना जैसा दिख रहा है लेकिन नहीं, आप पूरा उसको पढ़िए, खुशी में मत आ जाए कि अब तो बस मुझको मेरी ही EIR 1 आएगी, राइट। कॉन्फिडेंट रखना है बट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, राइट। ओके, so these were the small things that if you take care, okay, then you can do better, like better from the previous, or you can say previous gate exams, और जो भी अभी आपके मन में confusion आ रहा है उस चीज़ को avoid करने के लिए this tips will be helpful, okay. So yeah, all the best for your gate exam, okay, and just try to make your mind free, okay. जो होगा अच्छा होगा, ठीक है। गेट एग्ज़ाम हमको अच्छे से देना है, गलतियाँ मिस्टेक नहीं करनी है, ओके, और अपनी स्ट्रेटजी बना के रखनी है जो आपने टेस्ट सीरीज अपने वगैरह के लिए बनाई थी, ओके, उसको ही अप्लाई करना है। अगर गेट का जो एग्ज़ाम है हमारा ऑन द डे ऑफ गेट एग्ज़ाम अगर थोड़ा टफ भी आता है, ओके, मैनी टाइम इट मे हैपन कि टफ लेवल लगा है, तो वो टफ सभी के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए ही टफ होगा, वो सभी के लिए टफ होगा, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि वो टफ पेपर में भी, है ना, कैसे आपको नेगेटिव मार्किंग ना करें, कम से कम करें, ओके, लाइक। तो इन चीज़ों को ध्यान देंगे, आई होप आपका एग्ज़ाम अच्छे से अच्छा ही जाएगा। ऑल द बेस्ट। And if you want to know more about the GATE related interview experiences, you can find the link of all the interview experiences related to GATE and the other interview experiences on the playlist, and you can find the playlist link in the video description below, okay. So do watch them. So all the best, goodbye.